हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किए थे नेचुरल नंबर, रियल नंबर एक्सेट्रा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंट? सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप a to the power n. Here a is said to be base which may be any number, ये कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम कहेंगे बेस, एंड n जो कि इसकी पार है, it is said to be exponent. So what is mean by a to the power n? A to the power n means a is multiplied up to n times, a into a into a into up to n times. So अब clear हुआ कि exponent क्या होता है? Exponent is power of any number. Here the number is said to be base and the power is said to be exponent. So this expression is said to be n power of a या a to the power n, a to the power n, and n is also its exponent. तो अब हम देखेंगे कि जैसे सपोज हमारे पास है 2 to the power 5, so it means 2 is multiplied up to 5 times. Clear? सो अब क्लियर हुआ कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, a टू द पावर n, जो ये पार होती है इसी को हम एक्सपोनेंट या पार कहते हैं। so, अब हम देखेंगे कि इसके कुछ रूल्स हैं जिनसे हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन रूल्स में सबसे पहले हमारा केस है केस फर्स्ट, व्हेन n इज एनी इंटीजर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, ये कोई फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, सिर्फ होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो हमने देखा कि जब हमारा n कोई पॉजिटिव नंबर होगा, सपोज a टू द पावर 3, तो इट मीन्स a इज मल्टीप्लाइड अप टू 3 टाइम्स। और जब हमारा n कोई निगेटिव इंटीजर होगा, सपोज a टू द पावर -n, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव n, तो a टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर n. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3 टू द पावर -2, दिस विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 2. सो इट विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3, 1 अपॉन 9. So this is the case, yeah, this is the condition when n is any integer. When it is positive, then we will solve like this. A to the power 3 means a is multiplied up to 3 times, and when it is negative integer means it is -n, then we will keep it into denominator. So it will become 1 upon a to the power n. For example, 3 to the power -2 is equals to 1 upon 3 to the power 2. And now it is multiplied up to 2 times, so 3 into 3, 9. So it will become 1 upon 9. Let's see one more example. Suppose we have 5 to the power -2 or 5 to the power -3. So it will become 1 upon 5 to the power 3. And now we will multiply 5 up to 3 times. So it will become 1 upon 125. So clear? When n is an integer, what we will do? Now there are some rules of exponents. So our first rule of exponent is a to the power n m into a to the power n. तो इसको हम कैसे solve करेंगे? a to the power m means a is multiplied up to m times, and a to the power n means a is multiplied up to n times. So we can write it as a multiplied up to m into n times, sorry, m plus m n times. So we will get a to the power m into a to the power n means a to the power m plus n. When the base is same, so we can write a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 into 2 to the power 2. So it will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2.
it is 2 to the power 3 and it is 2 to the power 2. So it is 2 to the power 5. Hence it is clear. So 3 plus 2 is equals to 5. So when the base is same, we can add the exponents. When it is in multiply, a to the power n, m into a to the power n will become equal to a to the power m plus n. So first rule is clear. जब हमारे पास a to the power m into a to the power n होगा तो ये हमें मिलेगा a to the power m plus n. m plus n. Similarly एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 3 to the power 3 into 3 to the power 4. So ये हमारे पास हो जाएगा 3 to the power 3 plus 4. That is 3 to the power 7. हमारा नेक्स्ट रूल है a to the power m अपॉन a to the power n. अभी हमने ये देखा था कि जब हमारा ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a to the power m into a to the power minus n, क्योंकि a to the power minus n is equals to a to the 1 upon a to the power n. और अभी हमने लास्ट वाले रूल में ये पढ़ा कि a to the power m into a to the power n, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा a to the power m plus n. तो सिमिलरली यहाँ पर ये हमें मिलेगा a to the power m minus n. तो जब हमारे ये फ्रैक्शन में होंगे a to the power m अपॉन a to the power n, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा a to the power m minus n. एक एग्जाम्पल देखते हैं. We have 4 to the power 4 upon 4 to the power 3. So it will become 4 to the power 4 minus 3, that is 4. इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखिए. 4 to the power 4 means 4 into 4 into 4 into 4 upon 4 to the power 3 means 4 into 4 into 4. तो ये 3 इन 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये हमें मिल गया 4. सो अब ये क्लियर हो गया कि a to the power m अपॉन a to the power n को हम लिख सकते हैं a to the power m minus n. हमारा नेक्स्ट रूल है a to the power m into की पावर n. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमें मिलेगा a to the power m into n. एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव 2 to the power 2 की होल पावर 3. तो ये हमें मिलेगा 2 into 2 की होल पावर 3 मीन्स ये हमें 3 बार और मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ये 3 टाइम्स हो गया. तो ये कितना आ गया 2 to the power 6. सो ये क्लियर हो गया कि ये हमें मिलेगा 2 to the power 6. सो a to the power m की होल पावर जब n होगी तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर m into n. अब हमारा नेक्स्ट रूल है a b की पावर n. तो इसको हम लिख सकते हैं a b into a b up to n टाइम्स. तो इसको हम लिख सकते हैं a into a up to n टाइम्स. सिमिलरली b into b up to n टाइम्स. तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर n और b की पावर n. तो दिस इज द नेक्स्ट रूल दैट व्हेन वी हैव a b to the power n, तो ये हम लिख सकते हैं a to the power n into b to the power n. अब नेक्स्ट रूल है a अपॉन b की पावर n. तो इसको हम लिख सकते हैं a into a up to n टाइम्स अपॉन b into b up to n टाइम्स. तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 अपॉन 5 to the power 2. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2. तो ये थे हमारे कुछ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट. अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 अपॉन 2 to the power 5 into minus 2 अपॉन 3 to the power 4 into 3 अपॉन 5 to the power minus 1. तो हमने अभी देखा था कि 3 अपॉन 5 to the power minus 1 है. तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन 3 अपॉन 5. तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 to the power 5. ये है a to the power n अपॉन b to the power n. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 to the power 5 हमारा 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 to the power 5. अब माइनस की पावर 4 ये हमें प्लस मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 इंटू ये हो जाएगा 5 अपॉन 3.
तो ये हमें मिल गया 2/4 और नीचे 2 to the power 5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमें नीचे मिलेगा 2 into 3 to the power 4 plus 1 5। क्लियर? यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि इसकी पावर निगेटिव में थी और ये माइनस टू द पावर 4 पॉजिटिव हो गई। ये a/b की पावर n को हमने a की पावर n/b की पावर n कर दिया, 1/1 की पावर 5/2 की पावर 5 कर दिया। तो ये हमें मिल गया, ये 2 की पावर 4 से हमने 2 की पावर 5 को कैंसिल कर दिया, ये 2 सिर्फ एक पावर बची 2 की, 5/2 into 3 to the power 5। तो ये हमें मिल जाएगा 5/2 into 3 की पावर 5, मतलब हमें 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमें मिलेगा 243। तो ये मिल जाएगा 5/486। दिस इज आवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 to the power n plus 3 minus 6 into 5 to the power n plus 1 upon 9 into 5 to the power n minus 2 square into 5 to the power n। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 5 की पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसमें हम न्यूमरेटर में से भी 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर n प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। ये अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब बेस सेम होगा और पावर्स एक्सपोनेंट्स में होगी तो उनको हम प्लस कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 6 into 5, क्योंकि 5 की पावर n plus 1 को हमने लिख लिया 5 की पावर n into 5 की पावर 1, तो 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में से भी 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिलेगा 9 minus 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर भी 5 की पावर n है और नीचे भी, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं और अंदर हमारे पास है 5 क्यूब मीन्स 5 की पावर 3 मीन्स 5 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें मिल जाएगा 125 minus 6 5 30/9 minus 4। तो ये हमें मिल गया 95/5, दैट इज इक्वल टू 19। तो देखा आपने रूल्स जो हमारे एक्सपोनेंट के थे उनको यूज करके ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है व्हेन आवर एक्सपोनेंट इज अ रेशनल नंबर। जब हमारा एक्सपोनेंट कोई रेशनल नंबर होगा, मीन्स सपोज वी हैव a to the power 1/n, तो a to the power 1/n अगर इक्वल टू x है तो a इज इक्वल्स टू, अगर हम दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा n/n इज इक्वल्स टू x/n, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू x to the power n। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा x जिसकी पावर n इज इक्वल्स टू a हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 8 to the power 1/3, इसका मतलब है कि हमें √3 8 ये फाइंड करना है। जैसे तुमने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, 4 का स्क्वायर रूट मीन्स 4 का रूट, यहाँ पर 2 आ जाता है, 2 नेग्लेजिबल होता है, रूट का मतलब 2 ही होता है, तो इसको हम समटाइम्स सिंपल ऐसे √4 भी लिख देते हैं। तो इसका मीन्स है 2 into 2। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ये आ गया 2। तो सिमिलरली यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, तो ये हमें मिल जाएगा 2। 8 to the power 1/3 is equals to 2। मीन्स हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पर हमें 8 मिल जाए। क्लियर? और यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर हमें 4 मिल जाए। तो ये है जब हमारा एक्सपोनेंट कोई रेशनल नंबर होगा। इनमें भी वही रूल फॉलो होंगे कि अगर a to the power 1/n into a to the power 1/m है तो हम इनको a to the power 1/n plus 1/m लिख देंगे। सिमिलरली जब a to the power 1/n into 1/m होगा तो इसको हम a to the power 1/n into 1/m कर देंगे। तो वही रूल इसमें भी अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फाइंड करना हो 4 to the power 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 to the power 3 to the whole power 1/2।
तो इट मीन्स हमें 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका रूट फाइंड करना है। तो ये मिल जाएगा हमें 64 रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया 8। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन है -8 टू द पावर 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं -8 का स्क्वायर की पावर 1/3, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो जाता है, ये 2/3 हो जाएगा। तो -8 का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 64, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये 1/3। इट मीन्स हमें 64 का ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको क्यूब करने पर हमें 64 मिल जाए। ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू 64। इसको हम लिख सकते हैं √364। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हेन आर एक्सपोनेंट इज अ रेशनल नंबर। सो फर्स्ट एग्जांपल इज 64/25 टू द पावर -3/2। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 25/64 टू द पावर 3/2। तो अब हमें क्या करना है, 25/64 की पावर 3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं का रूट की पावर 3। तो a/b की पावर n का मीन है a की पावर n अपॉन b टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 25 की पावर हाफ अपॉन 64 की पावर हाफ और होल का क्यूब। तो ये हो जाएगा 5 और ये 8, 5/8 टू द पावर क्यूब। तो 5 मल्टीप्लाई अप टू 3 टाइम्स एंड 8 मल्टीप्लाई अप टू 3 टाइम्स। सो देखा आपने कि जब हम रूल्स का यूज करेंगे तो कितनी इजीली ये सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 1/रूट, दिस इज 3 पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√4 टू द पावर -5/3। ये रूट हमारा हट जाएगा क्योंकि ये जो 3 है हमारी डिनोमिनेटर में आ गई, -5/3 हो गया। अब हम ये माइनस हटाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, 4 टू द पावर 5/3। अब हमें 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको √3 करना है। √3 का मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आ जाए। तो इसको हम, ये 4 है, ये एक 4 आ जाएगा और ये 4 की पावर 2/3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 बाहर लिख दें, ये x की पावर 2/3 हो जाएगा और फिर ये 4 अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 इंटू 4। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 इंटू 2। तो ये हमें मिल गया x टू द पावर 1/6। क्लियर? ये हमारा 3 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो रूट के बाहर होते हैं ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो यहाँ 2 था, ये 2/3 हो जाएगा। फिर ये 4 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2/3 इंटू 4, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो ये आ गया x टू द पावर 1/6। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 4 टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/32 देन फाइंड x। क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड पावर में है तो हम इसको भी पावर में लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और ये हो गया 2 टू द पावर 2 की होल पावर 2x। 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू, इसको हम अगर न्यूमरेटर में ले आए तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -5। तो दोनों तरफ हमें 2 की पावर्स में मिल गया। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है, तो 4x इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। तो ये x हमें मिल गया, x इज इक्वल्स टू -5/4। तो एक बार और देख लेते हैं हमने इसको कैसे किया। ये 4 था, इसको हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 की होल पावर 2x, और 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इस 2 की पावर 5 को हम ऊपर ले गए तो ये हो गया 2 की पावर -5, और ये क्योंकि a टू द पावर m इंटू n को हम a टू द पावर m इंटू n लिख देते हैं, ये हमारा रूल है। तो ये हो गया 2 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 की पावर -5, और ये
क्योंकि ये 2 की पावर में है दोनों, ये सेम हो जाएंगे। 4x इज इक्वल्स टू -5, तो इससे हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू -5/4। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ABC इज इक्वल्स टू 1, तो हमें ये प्रूव करना है कि 1/1 + a + b इनवर्स प्लस 1/1 + b + c इनवर्स प्लस 1/1 + c + a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसमें हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये वाला। हमें पता है कि b इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/b, तो ये हो जाएगा 1 + a प्लस 1/b। ऐसी c इनवर्स को हम लिख देंगे 1/c, 1 + b प्लस 1/c प्लस 1/1 + c प्लस a इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1/a। अब हमें ये कंडीशन दी है कि ABC इज इक्वल्स टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 1/b फाइंड करेंगे, इस b को इधर ले जाएं, तो ये हमें मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू 1/b। क्या इसकी कोई नीड है, 1। सिमिलरली अगर हमें 1/c फाइंड करना हो, तो हम इस c को इधर ले जाएंगे, तो ये मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू 1/c। तो और AB इज इक्वल्स टू 1/c, तो 1/c की जगह यहाँ पर इस b का हम LCM ले लें, तो ये हमें मिलेगा b + AB + 1, ये होल के नीचे b आ जाएगा। अब ये b न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा b/b + AB + 1, और यहाँ पर 1/1 + b + 1/c की जगह हम लिख सकते हैं AB। क्लियर। और यहाँ पर c की जगह अगर हम इस c को इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा 1/AB, यहाँ हो जाएगा प्लस 1/c की जगह हम लिख सकते हैं 1 + 1/AB + 1/a। अब यहाँ पर भी हम LCM ले लें, ये तो हमारा सेम रहेगा, b/b + AB + 1 + 1/1 + b + AB + 1/, इसमें हम LCM लेंगे तो हमें मिलेगा AB, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, AB + 1 + b/AB। तो इस AB को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा AB। तो अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो LCM लेने पर हमें मिलेगा 1 + b + AB, और न्यूमरेटर में हमारे पास था b + 1 + AB। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, इनको कैंसिल करने पर हमें मिल जाएगा 1, दैट इज RHS। तो क्लियर हो गया। b इनवर्स को हमने लिखा 1/b, फिर हमने इसका LCM लिया, b ऊपर आ गया, c को हमने लिखा 1/c, और 1/c इज इक्वल टू AB, और यहाँ पर c की जगह हमने लिखा 1/AB। इसमें भी हमने LCM लिया, AB ऊपर आ गया, ये नीचे हमारे डिनोमिनेटर तीनों सेम हो गए, LCM लेने पर हमें मिल गया 1 + b + AB, और ऊपर हमारे पास आ गया b + 1 + AB हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो कैंसिल करने पर हमें मिल गया 1, दैट इज आर RHS। तो ये थे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो हमने एक्सप्लेन किया कि जब हमारा एक्सपोनेंट इंटीजर होगा तब हम कैसे अप्लाई करेंगे, और रेशनल नंबर होगा तब कैसे अप्लाई करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।